guys, how are you all? And lots of thanks for subscribe and likes and views. Lots of thanks for all of these. So guys, today we are going to discuss about the control and coordination. Basically, I have put out this video on the demand of 10th class के कुछ students ने मुझसे demand करा that ma'am please add this topic particularly the control and coordination because ये थोड़ा tough topic लगता है and please include Hindi and English both दोनों को लेकर चले. So that's why I am just adding this video with Hindi and English both. So in this video you will find that will be very beneficial for the student who are in 10th also, and I'll at the same time I'll add some concepts which will be very beneficial for the student who are preparing for the SSC CGL and the IS aspirants also. Okay, and also if any medical students are there, they want the basic concepts, that those concepts are also there in my videos. Okay, so you will find in this video basically we will cover some topics let's begin. So whatever topic we are going to cover in this video are the first one is the stimulus. First of all, we will see what is a stimulus. Then we will go to the neuron, that what are neurons, and then chemical impulses, synapse, receptors, reflex action, reflex arc, types of neurons. Okay, so these all things are there in this video. एंड दिस इज अब बेसिकली ये वीडियो फर्स्ट पार्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन का, तो इसमें मैंने सिर्फ न्यूरॉन के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं और इसके बाद फिर हम लोग आगे के केमिकल एंड कोऑर्डिनेशन के फर्दर टॉपिक्स और फर्दर पार्ट को देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें अपलोड करना इट्स नॉट पॉसिबल. या सो ओके, सो लेट्स बिगिन दैट व्हाट इट इज सेइंग. Yes, so first it is saying that first point is basically I will read the first point and I'll explain it in Hindi also. Okay, at the same time I'll do both the thing. So first point it is saying that all the living organisms respond and react to changes in the environment around them. So सारे लोग अगर कुछ भी सडन हो जाता है, कोई सडन कहीं बैठे हुए हैं और सडन कोई चीज़ होती है ऐसी जो अनयूजुअल थिंग्स कुछ होती है, जैसे किसी को चोट लगती है, किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर दिया या कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई, तो वो क्या करेगी, उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी इसके अगेंस्ट. ओके, एवरीवन रिस्पॉन्ड अगेंस्ट एनीथिंग लाइक इफ एनीथिंग अनयूजुअल हैपेंस. ओके, so the changes in the environment to which the organisms respond and react and are called stimuli. Okay, so what is stimuli? Like stimuli क्या है कि जो sudden change होता है, if you want to be very specific, क्या specific इसका आंसर रहेगा, तो stimuli is the sudden change in the environment. Okay, like you are sitting on any table or any bench and I'll throw an chalk to upon you. Okay, मैंने एक chalk फेंक दिया तुम्हारे ऊपर और क्या हुआ, तो सडन वो चेंज हुई, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग कि वो चीज़ होने वाली है, ऐसी चीज़ होने वाली कि कोई चॉक फेंकेगा या कुछ भी होगा. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. सो उसको देखकर क्या होता है कि फिर इंसान उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है. तो ये सडन चेंज जो इन्वायरमेंट में हो रहा है जिसके लिए हम अवेयर एक्चुअली नहीं थे, दैट्स द थिंग इज नोन एज द स्टिमुली. Okay, sometimes we touch that hot object, so that is also the stimuli for our body, such as light, heat, cold, sound, smell, touch, etc. Sometimes हम लोग कोई बहुत गर्म सा ऑब्जेक्ट टच कर लेते हैं तो हमारी बॉडी सडन रिस्पॉन्ड करती है, बिकॉज हमारी बॉडी के लिए वो चीज़ सडन चेंज है. Body was not prepared for that thing that you are going to touch the heat object and anything else. Okay, cold thing को भी touch करो या किसी भी चीज़ को touch करो और तो body respond करती है. So any sudden change is known as the stimuli. Okay, so now the third point, what it is saying that both plants and animals respond to stimuli but in a different manner. Yeah, so it is saying that दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल रिस्पॉन्ड करते हैं इस स्टिमुली के अगेंस्ट. सो प्लांट सेल में हर ऑल द टाइम यू आर नॉट एबल टू सी दैट दे आर रिस्पॉन्डिंग. ओके, हम लोग नहीं समझ पाते कि वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो चीज़ें होती है वहाँ भी रिस्पॉन्ड, वो प्लांट सेल भी रिस्पॉन्ड करते हैं. ओके, और एनिमल सेल भी रिस्पॉन्ड करते हैं, वो तो यूजुअल है, सारे लोग जानते हैं इस चीज़ को, अवेयर है. अगर कुछ भी चीज़ें हुई बाहर, जैसे सडन चेंज हुई. Now, the another point is control and coordination in animals. It is brought about in all animals with the help of two main system. So, हमारी बॉडी कैसे इस स्टिमुलस को पहचानती है, कैसे समझ जाती है कि कुछ मेरे तरफ आया या हमने कुछ हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया. तो
ये जो चीज़ें होती है ना बेसिकली 2 चीज़ों पे हमारी बॉडी के अंदर 2 ऐसा सिस्टम है, 2 ऐसे मैकेनिज़्म है जिस पे डिपेंड करती है और हमारी बॉडी पहचानती है कि हाँ हमने किसी स्टिमुलस को टच किया है, कुछ चीज़ कोई भी ऐसा अनयूजुअल चेंज हुआ है, सडन चेंज हुआ है तो उसके बाद हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है या सो बेसिकली 2 सिस्टम इन आवर बॉडी आर रिक्वायर्ड फॉर दिस stimulus. Okay, so that is the nervous system and endocrine system. Okay, nervous system basically related to the nerve cells, brains, and everything like that. And endocrine system is basically related to the hormones. Okay, so in this particular video, I'm going to tell you about the nervous system, like not the I will initial मैं शुरुआत करूंगी कि नर्वस सिस्टम कैसे कैसे काम करता है लेकिन अभी नर्वस सिस्टम के लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो में सारे कंटेंट अपलोड करना है. Okay, so basically we will see the first neurons. Okay, so यहाँ पे इस पॉइंट का ये मतलब हुआ कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दो ऐसे सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो रिस्पॉन्ड करते हैं अगेंस्ट एनी स्टिमुली. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. सो ये नर्वस सिस्टम है क्या, वही चीजें दी हुई है. जस्ट लाइक फर्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज. Okay, if we'll see the skin structure or muscles then you will find that कि हर जगह न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स हैं प्रेजेंट जो कि इस स्टिमुलस को, इस सडन चेंज को पहचानते हैं और इस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन इस चीज को पहचानता है कि हाँ कुछ अनयूजुअल थिंग हुई है बॉडी में तो वो फिर से वो मैसेज रीबैक आता है और फिर जाकर हमारी बॉडी एबल होती है कि मैं उस जगह से हाथ हटाऊं. लाइक मैंने कोई गर्म ऑब्जेक्ट टच कर दिया तो ब्रेन के पास फर्स्ट ऑफ ऑल द मैसेज वेरी क्विकली विद इन अ सेकेंड इट विल गो टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन अगेन इट विल कम बैक टू या जस्ट रिमूव योर हैंड. अपना हाथ हटाओ, यू आर नॉट टचिंग अ गुड ऑब्जेक्ट, इट इज अ हॉट ऑब्जेक्ट, इट इज अ कोल्ड ऑब्जेक्ट. ओके, सो ये चीज होती है एक्चुअली नर्वस सिस्टम में. So nervous tissues is made up of an organized network of nerve cells or neurons and is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of the body to another. So इनका next step इन्होंने ये कहा कि nervous system कैसे function करता है by the network. अगर body की structure देखा जाए तो उसमें एक जाल होता है, जाल सा बिछा होता है neurons का. everywhere neurons are present. ओके, हिंदी में शायद ऐसे कोशिका तंत्र कहते हैं. तो एवरीवेयर दिस कोशिका तंत्र इज प्रेजेंट और न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी. ओके, सो जैसे इन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है या कुछ सेटिंग चेंज हुआ है इट विल टेक द मैसेज टू द टुवर्ड्स द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन इट विल अगेन उसी न्यूरॉन्स लाइक दूसरे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर आल्सो देयर, वी विल डिस्कस अबाउट दैट पार्ट आल्सो. तो वहां से फिर मैसेज आता है कि हाथ हटाओ, रिमूव करो अपना हाथ. ओके, सो ये न्यूरॉन है क्या, कैसा दिखता है, कैसे काम करता है, वो अगले पॉइंट में लाइक द टॉपिक इज हियर द पॉइंट इज गिवन दैट न्यूरॉन इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. ओके, सो नर्वस सिस्टम का अगर हम लोग एक इकाई को देखा जाए, एक यूनिट को देखा जाए, सिंगल यूनिट की ये कैसे काम करता है, तो ये डायरेक्टली और ये टोटली डिपेंड करता है न्यूरॉन्स पे. इसलिए से हम लोग कह रहे हैं न्यूरॉन इज द फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. ओके, सो सी क्या होता है या before going to this slide like receptors we will discuss about the neurons, then we will go to the receptors again. Okay, after that you will be able to understand that what the receptors are. Yeah, so see या दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन्स. ये एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें इस स्ट्रक्चर में ये जो नेटवर्किंग लाइक स्ट्रक्चर यू आर सेइंग हियर दैट कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो उसे हम लोग कहते हैं डेंड्राइट. ओके, हिंदी आई डोंट नो व्हाट इट इज सेड दैट बट इन इंग्लिश इट इज द डेंड्राइट. आई थिंक कोशिका छिद्र और आई डोंट नो राइट नाउ. सो ये हुआ डेंड्राइट और डेंड्राइट कनेक्टेड है आपके सेल बॉडी से. ये जो ब्लूइश पार्ट दिख रही है ये सेल बॉडी है एंड सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस भी है. ओके, और ये सेल बॉडी डायरेक्टली कनेक्टेड है. लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज देयर दैट इज नोन एज एक्सॉन. ओके, सो एक्सॉन से कनेक्टेड है, नॉट दिस लाइट कलर पार्ट, दिस इज द ब्लू पार्ट दैट इज नोन एज द एक्सॉन. ओके, और ये जो लाइट कलर पार्ट ये जो दिख रहा है ये ओवल शेप में दैट इज द माइलिन शीट. दैट इज नॉट फॉर योर ग्रेड, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट. या so that is myelin sheath and that is present upon the axon. वो axon के ऊपर है, axon उस पर नहीं है, axon के ऊपर myelin sheath है. ओके, और ये axon लास्ट करता है नर्व एंडिंग में.
ओके, सो ये रहा डेंड्राइट, जो कि बेसिकली वी विल सी कि ये करता क्या है डेंड्राइट, फिर हुआ सेल बॉडी, फिर हुआ एक्सॉन एंड देन नर्व एंडिंग। ये चार पार्ट यू मस्ट रिमेंबर फॉर न्यूरॉन स्ट्रक्चर इन योर ग्रेड। Okay, in your grade like in class 10th, and also for the student who are preparing for ISC, SSC, CGL and IS aspirants, this is the basic concept. Okay, we will could say, see the very deeply in the higher grades like in grade 11 and grade 12. Okay, so see कैसे ये न्यूरॉन यहाँ से ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। सो सी डेंड्राइट के फंक्शन क्या है। सो इट अक्वायर्स इंफॉर्मेशन, सो ये इंफॉर्मेशन लेता है लाइक इन मसल सेल्स। ये कैसे इंफॉर्मेशन लेता है, रिसेप्टर्स में वो चीज देखेंगे कि ये इंफॉर्मेशन, डेंड्राइट का काम है इंफॉर्मेशन लेना, सेल बॉडी का काम है acquired information travels as an electrical impulse. Okay, so डेंड्राइट मैसेज लेता है और सेल बॉडी उस मैसेज को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, लाइक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यू नो व्हाई वी आर सेइंग इट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और वैद्युत वैद्युत समथिंग लाइक दैट इन हिंदी। सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बिकॉज ये जो प्रोसेस होता है ना, मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ये कैसे जाता है, ये जैसे बिजली दौड़ती है, जैसे बिजली के लाइक लाइट पास करती है, उस लाइट की स्पीड से चलता है ये न्यूरॉन का मैसेज भी, इसीलिए इसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का नाम दिया गया। तो ये डेंड्राइट से मैसेज लेगा और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, और axon, that is the longest fiber of the cell body, that is known as the axon, it transmit electrical impulse from cell body to dendrite of next neuron। और यहाँ से डेंड्राइट से मैसेज आएगा एक्सॉन में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। व्हाई वी आर कॉलिंग इट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, बिकॉज ये जो प्रोसेस होता है बहुत लाइट की तेजी से, जो तेजी से काम होती है, चीजें काम करती हैं। और यहाँ से जो एक्सॉन है वो सेल बॉडी का एक्सटेंशन है। ओके, लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ द सेल बॉडी है वो। सो वहां से फिर मैसेज जाएगा और वो नर्व एंडिंग के पास पहुंचेगा। अब नर्व एंडिंग से ये कैसे ब्रेन तक जाएगा, लाइक सी इन द नेक्स्ट slide, jab the synapse, another word is here, the another point is here, the synapse, it is the gap between the nerve ending of one neuron and dendrite of the another neuron। So you know कैसे ये नेटवर्क बना रहता है हमारी बॉडी में, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से अटैच रहता है, दूसरे तीसरे से, तीसरे चौथे से, एंड लाइक दैट इट रीचेस टू द ब्रेन, इस तरीके से ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। ओके, सो सी ये एरिया, ये पोर्शन यू वेयर यू आर सीइंग दैट दे आर नॉट कनेक्टेड, दे आर नॉट लाइक स्टिकी, दे आर नॉट कनेक्टेड, यहाँ पे पूरी कंप्लीटली वो मिले हुए नहीं है, बट दो गैप है, कुछ गैप प्रेजेंट रहता है। अगर ये गैप का लार्ज व्यू देखा जाए, सो ये पहले समझना जरूरी है कि ये दो, एक न्यूरॉन का एंडिंग दैट इज द नर्व एंडिंग, और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट। ओके, एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग एंड दूसरे न्यूरॉन का स्टार्टिंग दैट इज द डेंड्राइट पोर्शन को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। वहां पे वो कंप्लीटली जुड़े नहीं होते हैं, वहां पे गैप होता है, लाइक सी this type of gap is present between two neurons. It is the axon ending, like the nerve ending of the first neuron, and it is the dendrite, that is the initial part of the second neuron। So कैसे क्या होता है कि impulse, ये देखो यहाँ पर ये सारे जो मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, सब वेजिकल में बंद होकर के आते हैं, एक कवर में बंद होकर आते हैं, क्योंकि वो किधर इधर उधर ना जा पाए। सो वहां से ये फिर रिसेप्टर ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स का एक चैनल बना होता है, जिसके थ्रू वो पास होते हैं पहले न्यूरॉन से, और ये गैप के बीच में जाते हैं। जो गैप है, जो जहाँ पे दो न्यूरॉन मिल रहे हैं, तो उसको कहते हैं सिनेप्स, एंड फ्रॉम देयर इट एंटर्स टू द अनदर पार्ट ऑफ न्यूरॉन, द डेंड्राइट पार्ट ऑफ द अनदर न्यूरॉन। वहां पे डेंड्राइट पे एक अदर रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रिसीव करते हैं ये सारे इंफॉर्मेशन को, दैट इज द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। ओके, सो दैट इज द नोन एज द सिनेप्स। और here electrical signal is converted into chemical signal for onward transmission। so यही वो पोजीशन है, यही वो पार्ट है न्यूरॉन में जहां से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो केमिकल सिग्नल के फॉर्म में चेंज होता है, केमिकल सिग्नल्स के फॉर्म में चेंज होता है, और यहाँ से ये बॉडी के लाइक एक न्यूरॉन से होकर दूसरे न्यूरॉन से होकर के ब्रेन में जाता है। ओके, सो ये एरिया रहा सिनेप्स, और ये कैसे काम करता है और कहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तुम्हारा चेंज हो जाता है केमिकल इम्पल्स में। सो ये वो एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बेसिकली चेंज हो जाता है केमिकल इम्पल्स में। ओके, सो या
after that receptor is again there. So receptors क्या होते हैं? They are specialized tips of some nerve cells that detect the information from the environment. These receptors are located in our sense organs. Okay, so receptors क्या होते हैं? Uh, वो एक स्पेशल टाइप के नर्व सेल्स होते हैं, लाइक यू कैन से दैट द डेंड्राइट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन के डेंड्राइट पार्ट होते हैं जो कि डायरेक्टली रिसीव करते हैं मैसेज इन्वायरमेंट से. ओके, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट लाइक ईयर में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका दूसरा नाम है, आईज के रिसेप्टर्स का कुछ और, स्किन के रिसेप्टर का कुछ और, नोज के रिसेप्टर का कुछ और, टंग के रिसेप्टर का कुछ और है. ओके, सो that is the receptors are everywhere, they are present. Okay, according to the places where they are found, they are present, the name has been given, different name has been given. Like the receptors which are found on the ear, that is known as the phonoreceptors. That is very important for the SSC, CG and IES aspirants. Okay, that is very important. These all terms are has been asked lots of times, that's why it is important. So जो ear में जो receptors होते हैं, that we call the phonoreceptors. These receptors are responsible for hearing. Okay, because अब हम लोग जो भी चीज़ है आवाज़ सुनते हैं, जो भी साउंड सुनते हैं, तो वो वहाँ से ears इस receptors, phonoreceptors के through perceive करते हैं sound को, that it travels to our brain, and then we are able to understand that what type of sound, what kind of sound we are hearing. Okay, after that, there is receptors of neurons which are found on the eyes. They are known as the photoreceptors. That is responsible for seeing. If there will be no photoreceptors, you will not be able to see. ओके, सो ये फोटो रिसेप्टर्स, आईज में जो रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनको हम लोग फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग देखने में सक्षम है. Now, skin. The receptors which are found in the skin, if you see the structure of the skin, that is also in your syllabus. So उसमें जो जिस तरह के न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें हम थर्मोरिसेप्टर्स कहते हैं. उसके थ्रू क्या होता है, हम लोग पहचान पाते हैं कि हम लोग हॉट ऑब्जेक्ट टच कर रहे हैं, कोल्ड ऑब्जेक्ट टच कर रहे हैं, या किसी के टच को पहचान पाते हैं. दैट इज नोन एज द थर्मोरिसेप्टर्स. The receptors which are found on the nose, they are known as the olfactory receptors, जो कि smell detection के काम आता है, and the tongue, that is known as the gustatory receptors. Okay, so these all are the receptors. These all are the basically the neurons which are found in different parts of the body, and according to their place where they are found, the different name is given. That is very important, very important. Okay, so be careful with that part. या सो नाउ वी आर लाइक, अब हम लोगों का न्यूरॉन क्लियर हो गया कि न्यूरॉन है क्या और ये कैसे काम करता है. या सो अब न्यूरॉन ये ब्रेन तक मैसेज ले कैसे जाता है, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे मैसेज जा रहा है, या इन्वायरमेंट से मैसेज कैसे न्यूरॉन गेन कर रहा है. अब ये ब्रेन तक कैसे जाता है. तो जो ब्रेन तक जाने का प्रोसेस है न्यूरॉन से, उससे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, और जो पूरा आर्क एक लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो सी व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन इज quick, sudden and immediate response of the body to the stimulus. Okay, so what is reflex action? Like, I have thrown a chalk on you. Okay, you are not aware of that, and sudden you get, oh, someone has thrown a chalk on me. Yeah, so what you will do, you will just हटोगे वहां से कि कुछ हुआ है. तो ये रिफ्लेक्स एक्शन जो था बहुत क्विक होता है, बहुत सडन होता है और बहुत इमीडिएट होता है, सडन हो जाता है. कोई भी चीज सडन होगी, तुम वहां से हटो और कोई इंसान वहां से हट जाए, या पेड़ पौधों में भी ये चीजें होती हैं बहुत जनरली. यू विल नॉट बी एबल टू सी, बट इट हैपेंस. ओके, वी विल सी दैट पार्ट आल्सो. सो इस तरीके का जो हम लोग वो एक्शन करते हैं फॉर एनी सॉरी कोई रिएक्शन करते हैं फॉर एनी एक्शन, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्स एक्शन. दैट इज वेरी क्विक, सडन एंड इमीडिएट. like example is given, knee jerk, withdrawal of hand on touching hot object. क्या होता है जब hot object को touch करो, sudden we remove our hand. Why? Because of this reflex action. So क्या होता है, देखो reflex arc में the pathway through which nerve impulses pass through reflex action is called reflex arc. Okay, so जो path follow करता है ये nerve impulse, like कैसे न्यूरॉन environment से ये message लेता है, फिर ब्रेन को देता है, और ब्रेन से फिर से वो उस जगह को बताता है कि या कोई गलत चीज टच हो रही है, या हॉट ऑब्जेक्ट या कुछ ऐसी चीजें टच हो रही है जिससे मुझे हाथ हटाना है. तो ये पूरा जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्स आर्क. लाइक यू कैन say that more specifically, you can say that the pathway of reflex action is known as the reflex arc. Okay, so see the diagram is given like here.
सपोज कोई हीट ऑब्जेक्ट कोई किसी ने टच किया तो वो एक स्टिमुलस की तरह काम करेगा ऑब्वियसली. सो ये स्टिमुलस हमारे रिसेप्टर्स ऑर्गन्स लाइक न्यूरॉन्स जो जहाँ पे भी बॉडी टच हो रहा है, लाइक स्किन पे हो रहा है तो स्किन पे थर्मो रिसेप्टर्स है. थर्मो रिसेप्टर विल बिकम एक्टिव, दे एक्टिव हो जाएंगे और वहां से वो सडन जाएगा स्पाइनल कॉर्ड एंड अगेन फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड ये मसल्स को मैसेज भेजेगा, हटाओ अपना हाथ, हटाओ हाथ हटाओ. और यहाँ से फिर हमारे मसल्स काम करेंगे, अपना हाथ हटाएंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, दैट इज नोन एज द रिस्पॉन्स. एंड we will remove our hand or we will withdraw our hand, more specifically we will withdraw our hand. So ye pura process you can say that is forming an arc like a structure, that's why we are calling it the reflex arc. Like in the next week you in this slide you will understand very easily. See किसी ने इसने गर्म चीजें किसी चीज हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, लाइक कैंडल इज देयर. सो ये इसने स्टिमुलस की तरह काम किया. अब ये रिसेप्टर्स जो कि सेंस न्यूरॉन है वो मैसेज ले जा रहा है. यू कैन सी द ब्लू वायलेट कलर ऑफ द पाथवे, दिस थिन लाइन, इससे मैसेज जा रहा है तुम्हारे ब्रेन में, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड. अब वहां से अगेन ब्रेन बोल रहा है कि या ब्रेन मैसेज भेज रहा है कि ये मसल सेल्स को सी अगेन मसल सेल्स को ये मैसेज भेज रहा है कि हाथ हटाओ, वो गर्म ऑब्जेक्ट है, हाथ हटाओ गर्म ऑब्जेक्ट है. सो सडन ये चीज मैं बता रही हूँ बहुत स्लोली, बट ये चीज बहुत सडन होती है, बहुत क्विकली होती है. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, क्योंकि ये लाइट की तेजी से काम कर रही होती है. ओके सो ये होता है कि यहाँ से मैसेज गया, ब्रेन ने पहचाना और फिर सडन मसल्स को मैसेज सेंड करा, हाथ हटाओ. सो हाथ हटता है. सो यहाँ देख सकते हैं कि एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है. फॉर एनी एक्शन देयर इज वी आर डूइंग द रिएक्शन दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्स आर्क. Okay, basically this is the reflex arc. Okay, so now we have done all this reflex action, reflex arc, and everything is there. Now let's move to the another part, response. So response क्या है? Response तीन तरीके के होते हैं. तीन तरीके के कैसे कैसे? वॉलेंट्री, कंट्रोल बाय फोर ब्रेन, एग्जाम्पल टॉकिंग, राइटिंग. जो वॉलेंट्री जो हमारे हम जो चाह रहे हैं वो काम कर रहे हैं. जैसे मुझे बोलना है तो मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं बोलना है तो मैं नहीं बोलूंगी, मुझे कुछ लिखना है तो मैं लिखूंगी, मुझे कुछ करना है तो करूंगी. तो जो ऐसे रिस्पॉन्स जो मेरा दिल मैं करना चाह रही हूँ वो मैं कर रही हूँ, दैट इज नोन एज द वॉलेंट्री टाइप ऑफ वॉलेंट्री रिस्पॉन्स. ओके, ये बेसिकली हमारे ब्रेन का पार्ट जब हम लोग देखेंगे तो बेसिकली तीन पार्ट में ब्रेन बटा होता है, फोर, मिड एंड हिंड ब्रेन. ओके, सो वो फोर ब्रेन जो होता है, अग्रभाग जो होता है ब्रेन का, वो कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्शन. Then involuntary action, the action which are not in our control. Okay, so जो ऐसा action जो हमारे कंट्रोल ही में नहीं है, like heartbeat, we are not able to control our heartbeat. Okay, so heartbeat नहीं है हमारे कंट्रोल में. Vomiting, we are not able to control vomiting. If any person want to vomit, then he will vomit, he or she will vomit. Okay, so that is not in our control, that is not in our control. Respiration process. What is respiration? The breaking down of the complex food into the simpler food in the presence of oxygen is known as the respiration. So that is also not in our control, that is also the involuntary action. So ऐसे कोई भी action जो कि हमारे कंट्रोल में ना हो करके हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं involuntary action. And reflex action जो कि कंट्रोल किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड से, लाइक विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग ऑन हॉट ऑब्जेक्ट. सो रिफ्लेक्स एक्शन जो वैसा एक्शन है जो कि स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा है बेसिकली. सो उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. नो, क्या जरूरत है इस रिफ्लेक्स एक्शन की? इन सम सिचुएशंस सच एज टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, पिंचिंग एटसेट्रा, वी नीड टू एक्ट क्विकली, अदरवाइज आवर बॉडी वुड be harmed. Here response is generated from a spinal cord instead of brain. Okay, so brain की जगह spinal cord से response reflex action generate होता है. हम लोग सोचते हैं brain. I was also saying the brain, but that is not actually the brain, it is from the spinal cord. Okay, more specifically it's the spinal cord. ओके, सो क्या होता है कि अगर हम लोगों को रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता हमारे पास तो कोई चीज हॉट ऑब्जेक्ट टच करे वो टच करते रह जाते और बॉडी जल के खराब हो जाती. सो दैट इज नॉट द थिंग. सो इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत है कि हमारी बॉडी हार्म ना हो. अब द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो इज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. सो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन कितने तरीके के होते हैं? सेंसरी, मोटर एंड रिले. Must remember these all things, very important according to the ISSC examination point of view, ISS parents, and for the 10th it is obviously important. Okay, so sensory neuron, वो न्यूरॉन जो कि
मैसेज को बॉडी से कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ले जाते हैं, जबकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी और आईएएस वालों के लिए कि सीएनएस क्या है, पीएनएस क्या है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, सो पीएनएस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. So basically, I'm saying you about the CNS. So central nervous system includes both the brain and spinal cord. So sensory nerve जो ब्रेन मैसेज को बॉडी से ब्रेन तक ले जाते हैं, लाइक इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट दिस न्यूरॉन, द वायलेट कलर न्यूरॉन विच इज टेकिंग द मैसेज फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द ब्रेन, टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, दे आर नोन एज द सेंसरी न्यूरॉन. ओके, वैसे न्यूरॉन को हम लोग सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं. Now, the next neuron is motor neuron. This neurons transmit messages from the CNS to body parts. So, motor neuron वो neuron होते हैं like the screen structure you are seeing, जो कि ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को फिर से बॉडी को लाकर पहुंचाते हैं, उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं. और रिले न्यूरॉन जो कि स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में लाइक दीज न्यूरॉन्स रिले द सिग्नल्स विद इन द सीएनएस. ओके, सो जो कि मैसेज को ट्रांसमिट, जो कनेक्ट करता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को. यू कैन मोर स्पेसिफिकली से द न्यूरॉन विच कनेक्ट द सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन, द येलो पार्ट यू आर सीइंग दैट. ओके, सो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन डायरेक्टली नहीं नॉट कनेक्ट नहीं रहेंगे, वो दूसरे न्यूरॉन के थ्रू कनेक्ट रहते हैं जिसको कहते हैं रिले न्यूरॉन. ओके, या वन मोर थिंग इज इंपॉर्टेंट, सेंसरी न्यूरॉन को एफ्रेंट न्यूरॉन भी कहते हैं. ओके, द सेंसरी न्यूरॉन और एफ्रेंट न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन को इफ्रेंट न्यूरॉन भी कहते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और रिले न्यूरॉन को इंटीग्रेशन न्यूरॉन और या इंटीग्रेशन न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं. Okay, so be careful with this all things like in because ये दो पार्ट दो न्यूरॉन्स को जोड़ रहा है, इसीलिए ये दो नाम इसको दिया गया है. Okay, so that is all about the neurons. That is the first part of the chemical coordination. Okay guys, so keep liking and keep subscribing and give your ideas like what else is lacking in my video, और क्या चाहिए और क्या clear करना है. जो भी questions है you can ask me on the comment box and you can hit subscribe my channel. Okay, that will be very beneficial for me. Okay, so thanks in advance and thank you for this video also. Okay, thank you.